Hello students, welcome to GoPrep. My name is Anureet and I'm a physics tutor at GoPrep. In this session, we will discuss solutions of GTSE slot 1. So I will start with the physics section. So let's start with the question number 1 from physics section. So here is the question: an elevator is moving up and the variation in the velocity of the elevator is documented in the VT graph. What is the height to which the elevator takes the passenger before making first stop? तो सबसे पहले तो हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन से. तो हमें क्या पूछा गया है? बेसिकली हमें हाइट फाइंड करना है जब वो फर्स्ट टाइम स्टॉप करता है. कौन? एलिवेटर. एलिवेटर मींस लिफ्ट. तो लिफ्ट अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, राइट? तो कितने टाइम के बाद जाके वो फर्स्ट टाइम स्टॉप करता है? यू कैन सी दैट फ्रॉम this VT graph. Velocity at t is equal to 0 is all 0 and its velocity again is 0 at t is equal to 12 second. So t is equal to 12 second पे जाके वो stop करता है, ठीक है? तो हमें क्या find करना है? ये height find करना है, कितना वो attain करेगा. You know, as you can see from this figure, it is the actual displacement of the lift that is done in 12 seconds. So we need to find this displacement. And we know velocity time graph का जो area होता है that is displacement. So what is the area enclosed by this VT graph? This is the area that we need to find. So this looks like a trapezium, right? This is a trapezium actually. So ABCD is your trapezium. So we need to find the area under of this trapezium. So area of trapezium क्या होता है? Area of trapezium is half sum of parallel sides into distance between these two sides. So height, basically we can call it height, right? So as you can see, what is this AD? This AD is 12 minus 0, है ना? 12 minus 0, this is 12. What about this BC? This BC is, we can find this value of BC by subtracting the x coordinates of C and D. As you can see, what is the value of x at C? It is 10. What is the value of x at B? It is 2. So what is this? This is 10 minus 2, that is 8. Right? So these two parallel sides का value हमें पता चल गया. वो कितना है? 12 and 8. So let's put it here. 8 plus 12 into height कितना है? What is distance between these two? You have to subtract the y coordinates to find this height. That is 3.6 minus 0. 3.6 minus 0. Again, this is 3.6. When you will multiply these two, this will comes out to be 20 and this is 3.6. तो आंसर विल बी 36 मीटर. तो 36 मीटर का हाइट अटेन करता है, वो डिस्प्लेसमेंट करता है जब वो फर्स्ट टाइम स्टॉप करता है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन, राइट? सो करेक्ट आंसर इज सी. So what is the next question? The joiner sitting on the top most berth in the compartment of a moving train. So which is accelerating with the acceleration a, drops a bottle towards his friend. The bottle will fall where? Okay, let's see. सो एक कंपार्टमेंट में 2-3 बर्थ होते हैं, राइट? तो आप लोगों ने ट्रेन में ट्रेवल किया होगा. तो जो जॉइनर है दैट पर्सन इज सिटिंग एट द टॉप मोस्ट बर्थ और उसका फ्रेंड कहीं नीचे वाले बर्थ पे बैठा होगा. तो उसने क्या किया? बोतल को ड्रॉप किया. तो जब वो बोतल को ड्रॉप करता है, क्या उसने टारगेट क्या किया? बेसिकली अपने फ्रेंड को पास करने के लिए नीचे ड्रॉप किया, तो वो फ्रेंड उसका कैच कर लेगा. ये उसका टारगेट है. क्या वो उस के हैंड्स तक रीच कर पाएगा या फिर आगे गिर जाएगा या फिर पीछे गिर जाएगा? वी हैव टू आंसर दैट. और ट्रेन क्या कर रही है? एक्सेलरेट कर रही है. तो जो भी बंदा ट्रेन के अंदर बैठा है, दैट द पर्सन हु इज इन टच विद द ट्रेन, तो वो भी एक्सेलरेट कर रहा है विद द सेम एक्सेलरेशन, है ना? तो आंसर क्या है? बेसिकली पहले वो देख लेते हैं. आंसर इज सी. तो आंसर क्या बोलता है कि इट विल फॉल स्लाइटली अवे फ्रॉम द हैंड ऑफ द पर्सन. मतलब वो एग्जैक्टली उसके हैंड में नहीं रीच करेगा. जो टारगेट था, उस टारगेट के पीछे गिरेगा जाके वो, ठीक है? बोतल यहाँ पे कहीं पे या फिर यहाँ पे गिरेगा, बट नॉट एग्जैक्टली एट द टारगेट एंड इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द ट्रेन. सो लेट्स सी हाउ व्हाई दिस इज हैपनिंग, राइट? अब हमें पता है कि अगर हम h हाइट से किसी बॉल को ड्रॉप करते हैं, तो ड्रॉप का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी 0. इनिशियल वेलोसिटी 0. सो दिस इज जॉइनर. सो जॉइनर क्या करता है? बॉल को ड्रॉप करता है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी उसके रिस्पेक्ट में क्या है? 0. बट जॉइनर का वेलोसिटी जब उसने ड्रॉप किया, कुछ था ना, कुछ तो वेलोसिटी होगा एट दैट टाइम. सो लेट्स से दैट वेलोसिटी वाज u. तो उसका इनिशियल वेलोसिटी था u. किस डायरेक्शन में है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में. तो उसने बोतल को होल्ड किया हुआ है, तो बोतल के पास भी सेम वेलोसिटी होगा इन द सेम डायरेक्शन, राइट? तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया, बॉल के पास इनर्शिया ऑफ मोशन को बॉल क्या करेगी? रिटेन करेगी. तो उसके पास इनिशियल वेलोसिटी होगी, बट किस डायरेक्शन में होगी? एक्स डायरेक्शन में होगी और सेम होगी जो जॉइनर की वेलोसिटी है, राइट? बट वाई डायरेक्शन में क्या वेलोसिटी होगी? जॉइनर ने तो उसको प्रोवाइड किया ही नहीं कोई वेलोसिटी,
और इनिशियली इसके पास थी ही नहीं, तो इसकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी हो गई 0. ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द हॉरिजॉन्टल मोशन. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है? देयर इज नो फोर्स एक्टिंग इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. सो व्हाट अबाउट द ग्रेविटी मैम? व्हाट अबाउट द ग्रेविटी? ग्रेविटी इज एक्टिंग इन द y डायरेक्शन. तो ग्रेविटी एक्ट कर रही है y डायरेक्शन में. सो देयर इज फोर्स इन द y डायरेक्शन, दैट इज mg, बट देयर इज नो फोर्स इन द x डायरेक्शन. देयर इज नो फोर्स. सो देयर इज नो एक्सेलरेशन. वी नो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. सो देयर इज नो एक्सेलरेशन इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन. x मींस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन एंड y मींस वर्टिकल डायरेक्शन. ठीक है, तो Fy मींस वर्टिकल फोर्स लग रहा है, तो उसके पास वर्टिकल एक्सेलरेशन होगा. कितना एक्सेलरेशन होगा? g के इक्वल होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा. राइट, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में इस एक्सेलरेशन की वजह से उसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी, बट हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहेगी. किसकी? बोतल की. तो बोतल इस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी की वजह से हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट करेगा. ठीक है, और वर्टिकल वेलोसिटी की वजह से क्या करेगा? वो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट करेगा. अगर हम दोनों को साथ में लेके चलें तो उसका जो पाथ होगा इट विल बी लाइक दिस, है ना, ऐसा कुछ पाथ होगा. ग्रेट. सो लेट्स टॉक अबाउट दिस हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट. देखो, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शंस इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर होती हैं. इनको हम अलग अलग स्टडी करेंगे. दे आर नॉट कोरिलेटेड. ओके, सो एक्स डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? इट विल बी इक्वल टू एस इज इक्वल टू यू टी, क्योंकि हाफ ए टी स्क्वायर तो जीरो हो जाएगा ना. एस इज इक्वल टू क्या होता है? यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो एक्सेलरेशन क्या है? एक्स डायरेक्शन में 0, तो ये पूरा टर्म हो जाएगा 0. टी क्या है यहाँ पे? जब वो रीच करता है इस पोजीशन पे, हमें बेसिकली इस पोजीशन पे पहुंचना है. क्यों? क्योंकि एच हाइट नीचे कौन है? जॉइनर का फ्रेंड है, तो उसने टारगेट किया था अपने फ्रेंड तक इस बोतल को पहुंचाना, उसका टारगेट था. ठीक है, और इस जॉइनर के फ्रेंड की वेलोसिटी भी कितनी है? यू ही है. अगेन राइट, सो वी आर टॉकिंग अबाउट द बोतल. तो बोतल ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया? एस एक्स इज इक्वल टू यू इंटू टी. व्हाट अबाउट दिस पर्सन? ये जो जॉइनर्स फ्रेंड है वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? देखो, जॉइनर का फ्रेंड भी एक्सेलरेट कर रहा है, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एस डैश एक्स. ठीक है, सो दैट विल बी यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट द सेम टाइम. मतलब एक से टी टाइम में वो जो बोतल है वो h नीचे आती है, तो उस t टाइम के अंदर जो जॉइनर का फ्रेंड है वो कितना डिस्प्लेसमेंट करेगा? वो इतना डिस्प्लेसमेंट करेगा. एज यू कैन सी, दिस इज द एक्स्ट्रा फैक्टर इन कंपैरिजन टू दिस डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, तो ये s डैश x क्या है? दिस इज मोर देन एस एक्स. तो जब बॉल नीचे पहुंचेगी t टाइम के बाद, h हाइट नीचे पहुंचेगी, तो जॉइनर का जो फ्रेंड है वो आगे रीच हो चुका होगा, और बोतल कहां पे रीच करेगी? वो पीछे रह जाएगी. तो एज यू कैन सी, उसकी पोजीशन क्या होगी? In the opposite direction and away from the joiner's friend, right? Great. So let's move to the next question. This is a pretty easy question. A shopping cart is moving at constant speed. Okay, so cart is moving at constant speed. So initial speed उसकी है 4 meter per second. अब Elliot and Watson begin pushing the trolley. So two people started pushing the trolley in the opposite direction, but with the same force, that is 10 Newton and 10 Newton. So as you can see, the net force acting on this trolley is 0. Why? Because 10 Newton is acting in the right direction as well as 10 Newton is acting in the left direction. So net force acting on this trolley is 0. तो net force अगर 0 है, हमें न्यूटन के सेकेंड लॉ ने क्या बताया कि net force is equal to क्या होता है? Change in momentum upon time, right? So जब net force ही 0 है तो momentum में change क्यों आएगा? net momentum में भी change नहीं आएगा. momentum में change आने का मतलब क्या होता है? velocity में change आना, क्योंकि mass तो change होता नहीं. momentum क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी. सो वेलोसिटी विल रिमेन सेम. तो वेलोसिटी रिमेन सेम, कांस्टेंट. क्यों? क्योंकि डायरेक्शन प्लस उसका मैग्नीट्यूड दोनों ही कांस्टेंट रहेंगे. तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज आल्सो स्पीड, राइट? सो स्पीड ऑफ द शॉपिंग कार्ट वोंट बी अफेक्टेड, राइट? सो स्पीड ऑफ द शॉपिंग कार्ट विल रिमेन द सेम रहेगा. क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स नेट 0 लग रहा है. देयर आर टू इंडिपेंडेंट फोर्सेस एक्टिंग ऑन द कार्ट, बट नेट फोर्स इज 0. तो हमें मतलब होता है नेट फोर्स से. वी डोंट टॉक अबाउट इंडिविजुअल फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी, क्योंकि एक्सेलरेशन या फिर चेंज इन मोमेंटम किसकी वजह से आता है? जो नेट फोर्स एक्ट करती है किसी बॉडी पे. ठीक है, ग्रेट. ओके, अ ट्रेलर इज कैरिंग अ plane mirror in the carriage. While reversing, it is approaching a person at rest. So here is a person और एक trailer approach कर रहा है, reverse कर रहा है. ठीक है, और उसकी speed है 4 meter per second. उसके अंदर एक mirror है. तो let's talk about only mirror and the person who is at rest. ठीक है, so this is the person. So आपको बताना है speed at which the image of the person in the mirror will approach him. So
वी नो कि इमेज भी बनेगी उस पर्सन की मिरर के अंदर, है ना। तो अगर x डिस्टेंस पे पर्सन है तो x डिस्टेंस पे क्या होगी, इमेज होगी। तो आपको बताना है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द इमेज विद रिस्पेक्ट टू हिम, दैट इज पर्सन। सो स्पीड ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ठीक है। I फॉर क्या है, इमेज, P फॉर क्या है, पर्सन। ये फाइंड करना है, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करनी है इमेज की विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। So when we say VIP, relative velocity of image with respect to person, we always write VI minus VP, ठीक है, VI minus VP. Great. So what is the velocity of person? Velocity of person तो zero है, with respect to ground it's zero, so it will be equal to velocity of image with respect to ground. ये कौन सी velocity है, image की velocity है, किसके रिस्पेक्ट में, अगर कोई पर्सन ग्राउंड पे है तो उस ग्राउंड पे जो खड़ा है पर्सन या फिर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सिंपली से विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड उसका इमेज का वेलोसिटी क्या है, वी नीड टू फाइंड दैट वेलोसिटी, ठीक है। ओके, नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आंसर क्या है, पहले आंसर देख लेते हैं। आंसर इज सी। सो हाउ कम इट बी 8 मीटर पर सेकेंड, लेट्स सी दैट, ठीक है। तो एक फंडा क्या है, हमें बहुत ही सिंपल सा चीज पता है कि डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, पर्सन फ्रॉम द मिरर। ये दोनों डिस्टेंस हमेशा इक्वल रहते हैं। तो अगर ये कम होगा मतलब आगे की तरफ पर्सन बढ़ेगा तो x विल डिक्रीज। सिमिलरली ये वाला x भी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा और सेम रेट से डिक्रीज करेंगे, है ना। दोनों का स्पीड क्या होता है, सेम होता है। विद रिस्पेक्ट टू होम, मिरर के रिस्पेक्ट में। ये डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू मिरर सेम रहता है। अगर मिरर भी मूव कर रहा है तो आप क्या करोगे, आप मिरर के रिस्पेक्ट में इस डिस्टेंस को सेम रखोगे, नॉट विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बात नहीं करते, ठीक है। So velocity of this person with respect to mirror, this is velocity of the person with respect to mirror इस direction में। So velocity of the image with respect to mirror क्या होगा, in opposite direction. If this direction is positive, then this direction should be considered as negative. So velocity of person with respect to mirror is equal to minus velocity of image with respect to person. I hope this is clear, right? So how to open this? This is the velocity of person with respect to mirror. That is the relative velocity between these two. So this will be velocity of person with respect to ground. जब हम कुछ नहीं लिखते ना तो इसका मतलब होता है person का velocity with respect to ground. WRT means with respect to ground के respect में क्या है person का velocity. Minus mirror का velocity with respect to ground is equal to minus velocity of image minus velocity of person. देखो, sorry, this is velocity of image with respect to mirror. अगर मिरर का वेलोसिटी होता जीरो तो देखो यहाँ पे जीरो पुट करेंगे तो क्या आता, वेलोसिटी ऑफ पर्सन विल बी इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज। यही होता है ना, जितनी वेलोसिटी पर्सन की होती है उतनी ही वेलोसिटी इमेज की होती है इन जनरल। बट यहाँ पे अपना मिरर मूव कर रहा है, मिरर इज मूविंग, सो वी हैव टू कंसिडर द वेलोसिटी ऑफ मिरर एज वेल। सो वेलोसिटी ऑफ द पर्सन माइनस वेलोसिटी ऑफ द मिरर क्या है, इस डायरेक्शन में है 4 मीटर पर सेकेंड। सो डायरेक्शन भी लेना पड़ेगा क्योंकि ये वेलोसिटी लिखा हुआ है। सो दिस डायरेक्शन इज नेगेटिव, सो मिरर का वेलोसिटी कितना है, -4। ग्राउंड से अगर देखें तो उसका वेलोसिटी है -4, सो पुट -4 हियर। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज माइनस ऑफ -4, तो अपने पास आंसर क्या आएगा, PP प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज -4, राइट। सो वेलोसिटी ऑफ पर्सन विल बी इक्वल टू माइनस वेलोसिटी ऑफ इमेज -8। सो एज यू कैन सी वेलोसिटी ऑफ पर्सन तो जीरो था, है ना, पर्सन तो रेस्ट पे है। सो वेलोसिटी ऑफ इमेज क्या आएगा, from here velocity of image क्या आएगा, it will be equal to -8 मीटर पर सेकेंड। सो इमेज किस डायरेक्शन में मूव कर रही है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड से अगर देखेंगे तो इमेज इज इन मूविंग इन दिस डायरेक्शन, कितनी स्पीड से, 8 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। और हमने पहले देखा था कि वेलोसिटी ऑफ इन द लास्ट स्लाइड वी हैव सीन दैट वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, लेट्स सी दैट अगेन, सॉरी, या दिस वन, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पर्सन, ये हमें फाइंड करना है ना। और ये किसके इक्वल है, ये तो वेलोसिटी ऑफ इमेज के इक्वल, और वेलोसिटी ऑफ इमेज कितनी आई, -8 आई। तो वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू पर्सन क्या होगी, वो भी -8 ही होगी क्योंकि पर्सन तो रेस्ट पे है, ठीक है। सो वेलोसिटी नेगेटिव है बट स्पीड में हमें साइन लेने की जरूरत नहीं है, तो स्पीड इज 8 मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कि 4 सर्किट बने हुए हैं, देयर आर 4 सर्किट अरेंजमेंट्स एंड द कंपास नीडल्स विल शो डिफ्लेक्शन इन द सर्किट्स। कौन से सर्किट में नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा, ओके। नीडल डिफ्लेक्शन शो क्यों करेगा, कंपास नीडल डिफ्लेक्शन शो करेगा अगर मैग्नेटिक फील्ड होगा। मैग्नेटिक फील्ड क्यों होगा,
क्योंकि बिकॉज देयर इज करंट, अगर करंट होगा सर्किट में देन ओनली देयर विल बी मैग्नेटिक फील्ड, बिकॉज करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास क्या जनरेट हो जाता है, एचसी ऑर्स्टर सेड कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड आता है जस्ट इन द विसिनिटी ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ठीक है, यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाता है, तो उसको सेंस करेगा कंपास। तो लेट्स सी कहाँ पे करंट एक्चुअली फ्लो कर रहा है। लेट्स टॉक अबाउट डिस्टिल्ड वाटर। एज वी नो डिस्टिल्ड वाटर इज अ बैड कंडक्टर, सेम फॉर केरोसिन इज अ बैड कंडक्टर, sugar solution is a bad conductor. What about salt? Salt has free ions, है ना, salt के पास free ions होते हैं, तो that is a good conductor. तो यहाँ पे conduction होगा और यहाँ पे current flow करेगा. So only in this circuit, that is in the second case, only in the second case there will be deflection shown by the compass needle. तो correct answer is C. Great. Okay, so this is the last question of physics section. So positively charged rod is brought near a चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या करता है, हमें ये बताता है कि कोई रॉड चार्ज है या नहीं है, या फिर कौन सा चार्ज है रॉड के ऊपर, ठीक है, ये बेसिकली इलेक्ट्रोस्कोप हम यूज करते हैं इसलिए। तो अभी क्या हुआ कि चार्ज है इलेक्ट्रोस्कोप ऑलरेडी, और हम उसके पास क्या लेके आए, वी ब्रॉट अ पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड नियर इट, सो एज अ रिजल्ट द इलेक्ट्रोस्कोप लीव्स मूव क्लोजर टू ईच अदर। तो अगर पहले इलेक्ट्रोस्कोप के जो लीव्स हैं वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनके ऊपर चार्ज है, जो चार्ज यहाँ पे है वही चार्ज यहाँ पे होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है ना। तो जैसे ही हम एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड इसके पास लेके आते हैं, अगर ये क्लोज चला जाए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे चार्ज कम हो गया है, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू कम हो गई है, क्योंकि चार्ज अगर कम होगा तो रिपल्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस डिपेंड्स अपॉन द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस। अगर इसका चार्ज क्यू है ना, इसका चार्ज क्यू है, तो इनके ऊपर जो फोर्स लगती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इन दो चार्जेस के प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। तो जैसे ही ये रिपल्शन की वजह से डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, ये तो पता ही होगा ना सबको, तो जैसे ही आप ये पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आए तो यहाँ पे चार्ज डिक्रीज हो रहा है। तो चार्ज डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि भाई अगर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा तो वो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे अट्रैक्ट करेगी, कौन अट्रैक्ट करेगी, दिस पॉजिटिवली चार्ज रॉड। तो कुछ नेगेटिव चार्जेस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, है ना, तो नेगेटिव चार्जेस यहां से कम हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये कौन सा चार्ज था इसके ऊपर, इसके ऊपर था नेगेटिव चार्ज, है ना, नेगेटिव चार्ज था, तभी तो यहाँ पे चार्ज कम होगा ना, कि सम ऑफ द नेगेटिव चार्जेस विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस पॉजिटिव रॉड, ठीक है। अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता तो क्या होना चाहिए था, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होता और आप पॉजिटिव चार्ज रॉड लेकर आते, तो व्हाट वुड हैव हैपेंड कि जो इस मेटल प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, दैट पॉजिटिव चार्ज विल बी रिपेल्ड बाय दिस। तो वो पॉजिटिव चार्ज कहां पे आता, फिर वो मैक्सिमम डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए इन लीव्स के ऊपर आ जाता और इनके बीच का गैप इंक्रीज हो जाता, डिफ्लेक्शन इंक्रीज हो जाती, जैसे ही आप यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रॉड लेके आते, इन केस ये इलेक्ट्रोस्कोप अगर पॉजिटिवली चार्ज होता, बट यहाँ पे वो नेगेटिवली चार्ज है, राइट। सो आई गेस दिस इज क्लियर। So students, let's move to the chemistry section. Slot 1. The first question that we have is, which of the following experiments is correct to test the carbon dioxide gas? So, हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन से एक्सपेरिमेंट में, इनमें से कौन से सेटअप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होगी, देन ओनली वी कैन टेस्ट इट। तो कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत फेमस टेस्ट है, बहुत widely used popular test है, laboratory test, that is whenever CO2 is passed in lime water it turns it milky, whenever CO2 is passed in lime water it turns milky। तो हमें राइट हैंड साइड पे जो आपको apparatus दिख रहा है वो कौन सा दिखना चाहिए, लाइम वाटर प्लस CO2 का, और लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसा सिस्टम होना चाहिए, ऐसा अरेंजमेंट होना चाहिए जहां पे CO2 इवॉल्व हो रही हो। तो आप ध्यान से देखिए, बेकिंग सोडा, कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट्स हमेशा क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स ऑलवेज प्रोड्यूस CO2 ऑन रिएक्शन विद एसिड, राइट। तो हमें यहाँ पे बेकिंग सोडा प्लस कैल्शियम कार्बोनेट मिल रहा है, दोनों कार्बोनेट्स हैं, नहीं रिएक्ट करेंगे। लाइम वाटर प्लस विनेगर, लाइम वाटर प्लस विनेगर, यहाँ पे भी कोई रिएक्शन नहीं होगा। लाइम वाटर प्लस बेकिंग सोडा, यहाँ पे भी CO2 नहीं मिलेगी। तो आर ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर 4, जहां पे आपको बेकिंग सोडा के साथ विनेगर मिल रहा है। बेकिंग सोडा इज NaHCO3 एंड विनेगर इज CH3COOH, एसिटिक एसिड। So it will produce what? It will produce CH3COONA, a salt plus water
plus carbon dioxide, and that carbon dioxide will turn lime water milky. So correct option will be option A. Option A, that means fourth apparatus, fourth system will be the correct answer. Moving on, question number 8, which of the following is a chemical property of matter? So all of us know that odor, color, melting point, these are the physical properties, right? Physical properties वो होती हैं जो composition में change नहीं लाती हैं, but combustibility, combustion is what? A reaction of a substance या burning of a substance in the presence of oxygen. This is known as combustion. This is known as combustion, right? So in this case chemical composition change होगी, एक नए product बनेगा हमारे पास, एक नया compound बनेगा. That means combustibility is a chemical property. So correct option is option B. Now, which of the following plastics have cross-links polymer between their polymer chains? So when polymer chains are joined together by different branches and they are hard, then they are known as cross-linked polymer. तो हमें सबको मालूम है कि क्रॉस-लिंक पॉलीमर का सबसे अच्छे एग्जांपल्स जो हमारे पास हैं, these are melamine formaldehyde polymer and bakelite, which is a copolymer of phenol and formaldehyde. Both of these are cross-linked polymers, right? पॉलिथीन टेरिलीन फाइबर होता है, पॉलिथीन भी हमारा लीनियर पॉलीमर होता है, so they will not be the option. तो correct option will be B. Option will be the correct answer, B and D. That means melamine and bakelite. Moving on, fill in the blanks. We have to fill two blanks here. Most atmospheric ozone. Ozone is a gas which is concentrated or present at low pressure. So लो प्रेशर कहां होगा? हायर एल्टीट्यूड पे. तो कौन सी लेयर में होगा ये? स्ट्रेटोस्फेयर में. इट इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेटोस्फेयर एंड everybody knows that ozone protects us from UV और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ लाई करती है अप्रोक्सीमेटली 150 और 180 नैनोमीटर से लेकर 350 नैनोमीटर तक. तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा आपका सी ऑप्शन. तो ओजोन प्रोटेक्ट करती है हमें यूवी अल्ट्रावायलेट वेवलेंथ, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से. अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की वेवलेंथ आपको मालूम होनी चाहिए. और इट एग्जिस्ट इन लो प्रेशर जोन जो कि हमारा होता है स्ट्रेटोस्फेयर. So option C is the correct answer. Next, हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे हाइड्रोजन इज कंसिडर्ड एज द क्लीनेस्ट फ्यूल. सो पहली स्टेटमेंट क्या है हमारी? व्हेन अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन इज टेकन इन अ सिलेंडर एंड कंप्रेस्ड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, द नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट एरिया विल इंक्रीज. नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट एरिया विल बी व्हाट? विल बी नथिंग बट फोर्स पर यूनिट एरिया. और फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होता है? प्रेशर. तो अगर आप फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस की वॉल्यूम कम करते हैं तो उसमें प्रेशर हमेशा बढ़ता है. दैट इज ऑलवेज करेक्ट, राइट? कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑलवेज रिमेंबर प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम. तो अगर आप वॉल्यूम इंक्रीज करोगे तो प्रेशर डिक्रीज करेगा. अगर आप वॉल्यूम डिक्रीज करोगे तो प्रेशर इंक्रीज करेगा. इनवर्स प्रोपोर्शन. तो आप वॉल्यूम डिक्रीज कर रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, दैट मींस प्रेशर विल इंक्रीज एंड प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया. So number of collision per unit area will increase, right? So first statement is exactly correct. Now hydrogen is colorless. बिल्कुल सही, हाइड्रोजन कलरलेस होती है. Next, it produces fewer pollutants than petrol. बिल्कुल ठीक है, हाइड्रोजन का कंबशन होता है तो it produces what? It produces H2O. It produces what? It produces H2O, right? So it is cleaner fuel. हमें क्वेश्चन की ओपनिंग स्टेटमेंट में ही बोला हुआ है. फोर्थ स्टेटमेंट इज डाइहाइड्रोजन इज स्टोर्ड इन टैंक्स ऑफ मेटल अलॉयज. बिल्कुल ठीक है, NaNi5 इज द मेटल अलॉय, इसमें स्टोर किया जाता है इसको. फिफ्थ है में दिया हुआ है कि पर ग्राम लिक्विड डाइहाइड्रोजन विल रिलीज 50 किलोजूल ऑफ एनर्जी ऑन कंबशन. दिस इज रॉन्ग. एनर्जी रिलीज इज मच हायर, अप्रोक्सीमेटली 240 किलोजूल एनर्जी इज रिलीज देयर, राइट? सो A, B, C and D आर करेक्ट. E इज इनकरेक्ट. तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? Option A will be the correct answer. Okay. Moving on. An alloy X is composed of copper, tin, zinc and lead.
कॉपर, टिन, जिंक एंड लेड. इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बॉल बेयरिंग्स, गियर्स. बहुत ही कॉमन एग्जांपल है, इसका आंसर है गन मेटल. गन मेटल कंटेन्स लार्जली कॉपर, मोस्टली कॉपर होता है 88% के आसपास, एंड रेस्ट इज डिवाइडेड बिटवीन टिन, जिंक एंड लेड. इट इज ऑल्सो नोन एज रेड ब्रास, राइट? तो गन मेटल यहां पे ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, and the last question for this slot is, in an automobile engine, when fossil fuel is burnt, dinitrogen and dioxygen, nitrogen and oxygen, possible products क्या हो सकते हैं? यहाँ पे पूछा गया है, हमसे बोला गया है कि X और Y बनेगा. So what will be the possible answers here? Y is also used to produce rocket fuels and explosives. Okay, right? So identify X and Y. So X and Y will be NO and NO2. याद रखिए NO3 is no such thing. NO3 is nothing. NO3 कुछ भी नहीं होता है. NO3 नेगेटिव होता है, नाइट्रेट आयन. NO3 नहीं होगा. O3 इस मेथड से प्रोड्यूस नहीं किया जाता. नाइट्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करके ओजोन नहीं प्रोड्यूस करते. ओजोन ऑक्सीजन से ही डायरेक्टली प्रोड्यूस की जाती है. तो एक ही ऑप्शन आपके पास बचता है NO और NO2, जहां पे आपका NO2 जो है वो रॉकेट फ्यूल में यूज किया जाता है, राइट? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. ऑप्शन ए इज योर करेक्ट आंसर, NO and NO2, right? So thank you, students. Hey guys, I hope your GTSC went very well and you are very much curious to know the answers of the various questions. So I am Abha Pandey, your biology faculty at Go Prep. So we will discuss the biology questions. So the very first question in the biology part was, which structures helps in penetrating the which structure helps sperm in penetrating the ovum? So if we talk about, you know, that is for the process of fertilization, that is the fusion of male and female gamete, it is required that the sperm must penetrate this particular wall of the ova. So as you can see over here on the top of the head, that is on the head of the sperm, there is a cap-like structure. This cap-like structure is known as acrosome. And this structure secretes enzymes such as hyaluronidase, which is responsible for penetrating this particular wall of the ova, so that the sperm nucleus can reaches to the ovum nucleus and the fertilization take places. So the correct answer is acrosome. So let us move to the next question. The next question is saying the pair that belongs to the group of organism both showing 70S ribosome in the cytoplasm. As we know that in prokaryotes, in their cytoplasm there is 70S ribosome, which means we need to select the options which have both the organisms as prokaryotes. So yes, moss is eukaryotic in nature, so this is not correct option. If we talk about yeast and amoeba, they both are eukaryotic in nature. If we talk about the bacteria and nostoc, nostoc is a blue-green alga which is cyanobacteria. Hence, bacteria and nostoc, they both are prokaryotic in nature. If we talk about the penicillium and spirogyra, penicillium is a fungi while spirogyra is an alga, which means they are also eukaryotic in nature. So the correct option is answer C. I hope you have marked the right one. Moving to the next question. The question is saying, refer to the given experimental setup as shown in the given figure and select the correct option regarding. So if you can see this image, it is saying that in the flask X there is a warm sugar solution as well as yeast, while in Y there is a lime water. So now let us check the options. So the very first option is saying in X, yeast causes fermentation which converts sugar into lactic acid and carbon dioxide. Yes, if we talk about yeast, okay, they perform anaerobic respiration. They undergo the process of anaerobic respiration, but dear, they do not form lactic acid, they form alcohol. That's why we use yeast in various industries like baking industry and brewing industry. So if we talk about yeast undergo the alcoholic fermentation, which means alcohol and carbon dioxide. There is no formation of the lactic acid. So option A is absolutely wrong. If we talk about in Y,
oxygen gas is released while carbon dioxide gas is absorbed. From where do we get the oxygen? No, which means option B is also wrong. If we talk about the C option, in why lime water turns milky? Absolutely. What happened when the yeast will respire? It causes the fermentation and it will release alcohol and carbon dioxide. So when the carbon dioxide comes to the Y, because of the presence of lime water, because of this, and the lime water will react with the carbon dioxide and it will turns it milky. So the correct answer is option C. I hope you have marked it correctly. So now let us move to the next question. The question is saying which of the following statement is incorrect. So if we talk about it's asking about the incorrect one. Okay, so the atmospheric nitrogen can be taken directly by plants and animal. Cannot be taken. Obviously, we cannot directly take atmospheric nitrogen because it is very difficult to break the triple bond. If we talk about our atmosphere has 78% nitrogen gas, absolutely correct. The C option is saying blue-green alga fix nitrogen from the atmosphere and convert it into compounds for nitrogen, into the compounds of nitrogen. Yes, dear. Various bacteria, for example rhizobium and cyanobacteria, that is blue-green alga, what they do, they convert the atmospheric nitrogen into various nitrogenous salt. So the plant can take those nitrogenous salt from the soil. So yes, they are involved in the process known as nitrogen fixation. The option C is also correct. So now let us look at the option D. Option D is saying after nitrogen fixation, nitrogen is used for the synthesis of carbohydrate in plants. Absolutely wrong, dear. We use nitrogen for the synthesis of protein. ठीक है, अमाइनो एसिड्स बनेंगे, फिर प्रोटीन बनेंगे. ठीक है, so various nitrogenous compound we use nitrogen to make various nitrogenous compound. Plant use nitrogen to make various nitrogenous compound. For example, protein, they do not make it carbohydrate using the protein. So answer D is absolutely incorrect, which means D option is correct because it's asking about the incorrect statement. I hope you have marked it correctly. So now let us move to the next question. Kingdom, division, dash, order, dash, genus, species. So basically it's a hierarchy of taxonomy. So the very first is kingdom, which is followed by division, then comes the class, then order, then family, then genus, then species. ये various taxonomic rank है. तो बच्चा kingdom, division, class, order, family, genus, species. So option A is absolutely correct. Now let us move to the next question. Intracellular compartments are not found in the cell. Basically, if we talk about the intracellular compartment, which means the compartment which is present within the cell. So dear, so if we talk about eukaryotic cell, what they have various cell organelles which are membrane bound, which means there are different compartments which are performing different function, but such kind of compartments are not present in the prokaryotes. So from this, the option B is absolutely correct. Moving to the next question. A cell will swell up if the concentration of water molecule in the cell is higher than the concentration of water molecule in the surrounding medium. So it is saying the concentration is higher in the water concentration is higher in the cell. Now moving to the next question. The concentration of water molecule in surrounding medium is higher than the concentration of water molecule in the cell. The concentration is same while the concentration of water molecule does not matter. So if we talk about, we know that because of osmosis, the water moves from its higher concentration to lower concentration through a semi-permeable membrane. If we are looking to the option B, according to the option B, let us consider that this is a beaker and we have kept our cell in it. So the water concentration is higher. According to this, the water concentration is higher in this beaker. It has more water if I compare to the cell. So what will happen? The water will move from the beaker to the cell, which results in the swelling up of a cell. And this particular solution is the hypotonic solution. So option B is absolutely correct.
So I hope you have marked all the questions correctly and you found the questions interesting too. Now you can discuss your mathematics part. Hello guys, this side Nitika Verma and I'm your Mathematics Associate Faculty. So guys, I hope सबका GTSC बहुत अच्छा रहा होगा और सबने अच्छी तरीके से करा होगा. ठीक है, so the results will be out soon guys and all the very best for your results. के देखते हैं कौन टॉप करता है, किसकी रैंक आती है. ठीक है गाइज, सो अब हम बात करेंगे मैथ्स और एप्टीट्यूड के बारे में. ठीक है, सो बेसिकली ये जो है हमारा मैथ्स और एप्टीट्यूड के बारे में है. इसके क्वेश्चंस ऑब्वियसली मैं सॉल्व करके बताऊंगी कि कैसे आंसर्स आपके निकले हैं. ठीक है गाइज, तो चलते हैं अपने पहले उस पे मैथ्स पे एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ मैथ्स. सो पहले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है गाइज, इट्स गिवन दैट 1 और 1 नियरेस्ट होगा किसके नियरेस्ट होगा गाइज, ये हमें बेसिकली ये बताना है इसमें. सो गाइज क्या होगा हमारा, अगर हम ऐसा कुछ बनाते हैं, ठीक है, अगर हम प्लॉट करते हैं 1 और 1 को यहाँ पे, ठीक है, सो यहाँ पे हमारा 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, या -1 -2 देन अगेन 1 2, ये -1 हो गया. सो 1 और 1 यहाँ होगा. सो यहाँ से इसका 1 का डिस्टेंस होगा और यहाँ से भी इसका 1 का ही डिस्टेंस होगा, तो इक्वी डिस्टेंट होगा ना. व्हाट डू यू मीन बाय इक्वी डिस्टेंट? इक्वी डिस्टेंट का मतलब क्या होता है कि इक्वल डिस्टेंस, कि किसी एक पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस है. तो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंट होगा एक्स और वाई एक्सिस से. ठीक है गाइस, इक्वल डिस्टेंस पे होगा. यहां से यहां तक का 1 का डिस्टेंस होगा, यहां से यहां भी 1 का डिस्टेंस ही होगा. तो अगर मैं इसको सपोज ए और बी और सी लूं तो मेरा ए बी इज इक्वल्स टू बी सी हो गया ना, दोनों 1 1 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये इक्वी डिस्टेंट हो गया. ठीक है गाइस, नेक्स्ट पे चलते हैं. कमिंग ऑन टू 22nd नाउ. देयर आर 10 पॉइंट्स दैट आर हैविंग डिफरेंट एब्सिसा. अब क्या हो रहा है, हमारा जो एब्सिसा है, मतलब एब्सिसा क्या हो गया, एक्स का कोऑर्डिनेट हो गया. एक्स के कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ना हम एब्सिसा. तो वो जो है ना वो अलग अलग है, 10 पॉइंट्स है जिसमें वो अलग है. ठीक है, और सेम ऑर्डिनेट है, मतलब y जो है वो बिल्कुल सेम है, मतलब लेट करा हमने कि वो y ही है सपोज. ठीक है, y से डिनोट कर रहे हैं हम उसको. तो जब हम ऐसे कुछ ग्राफ पे इसको प्लॉट करेंगे, y अगर हमारा सपोज हमने किया कि 2 है, 2 का 2 बिल्कुल सेम है. ठीक है, ये 2 है और ये बिल्कुल सेम है. और हमारा आगे क्या हो रहा है, हमारा x जो है वो चला जा रहा है. मतलब पहला पॉइंट हमारा 1,2 हो गया, देन 2,2 हो गया, देन 3,2 हो गया, देन 4,2 हो गया, देन 5,2 हो गया. ऐसे ही 10 पॉइंट्स हो गए हमारे आगे. ठीक है, तो जब मैं इनको आपस में ज्वाइन करूंगी तो मेरे को क्या मिलेगी, मेरे को एक लाइन मिलेगी जो किसके पैरेलल होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी. सी क्या हुआ, 10 पॉइंट्स थे जिनके डिफरेंट एब्सिसा थे, मतलब एक्स जो है वो डिफरेंट थे. तो इसमें एक्स डिफरेंट है ना, एक में 1 है, एक में 2 है, एक में 3 है, एक में 4 है, एक में 5 है. ऐसे इधर लेके जाऊंगी तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, -2 आ जाएगा, -3 आ जाएगा. और सेम ऑर्डिनेट है, मतलब y जो है वो बिल्कुल सेम है. तो लेट अस सपोज कि y जो है वो 2 है, तो ये एक 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया. मतलब इसका जो डिस्टेंस है, जो पर्टिकुलर लाइन का जो डिस्टेंस आ रहा है एक्स एक्सिस से, वो बिल्कुल सेम है. ठीक है, y की फॉर्म में मतलब 2 है सपोज. तो ये क्या होगी, पैरेलल होगी ना. पैरेलल क्या होती है लाइंस, पैरेलल लाइंस वो लाइंस होती हैं जिनका डिस्टेंस बिल्कुल सेम होता है. अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 2 है, यहाँ से यहाँ का भी 2 होगा, यहाँ से यहाँ का भी 2 होगा, तो ये दोनों कौन सी लाइंस हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस हो जाएगी. तो इसलिए लाइन जो होगी वो क्या होगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी. तो बी हमारा आंसर होगा. ठीक है गाइस, बहुत आसान था, प्लॉट करके देख लेते, बहुत आराम से आ जाएगा. कमिंग ऑन टू 23rd नाउ. जब एक पॉलिनोमियल एफ एक्स जो कि दिया हुआ है हमारे पास ऐसा कुछ, इसको हमने डिवाइड करा है इससे, हमें रिमाइंडर बताने. गाइस रिमाइंडर थ्योरम क्या बोलता है, रिमाइंडर थ्योरम कि जब भी हमारा कोई पॉलिनोमियल पी एक्स डिवाइड होता है एक्स माइनस ए से, तो हमारा जो रिमाइंडर होता है वो पी ऑफ ए की फॉर्म में होता है. ठीक है, सो इसका मतलब मैं पी ऑफ 2 डाल दूंगी इसमें, मतलब
ये कर दूंगी मैं, एफ ऑफ 2 डाल दूंगी मैं। तो जब मैं एफ ऑफ 2 डालूंगी इसमें तो क्या हो जाएगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया 4 इंटू 8 माइनस 3 इंटू 4 प्लस 4 प्लस 1। सो ये हो गया 32 माइनस 12 प्लस 4 प्लस 1। सो ये आ गया मेरा 25। तो हेंस मेरा जो आंसर हुआ वो क्या हुआ, डी मेरा आंसर हो गया। ठीक है गाइस, चलो फिर चलते हैं अब आगे। आगे क्या दिया हुआ है कि पॉलिनोमियल्स हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स में दो पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, तो लेट हमने एफ एक्स को क्या करा, एफ एक्स को हमने ये ले लिया। ठीक है, और हमने जी एक्स को क्या ले लिया, ये ले लिया। तो जब हमने इसको सेम पॉलिनोमियल से डिवाइड करा, ठीक है, x प्लस 2 से डिवाइड करा, तो रिमाइंडर जो है वो बिल्कुल सेम आया। इस केस में अगर हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारा ऐसे कुछ फॉर्म में होगा, ये होगा, ये -8a हो गया प्लस 12 -13 हो गया। सो ये क्या आ गया, -8a -1। ठीक है, अब हम g ऑफ -2 निकालेंगे रिमाइंडर निकालने के लिए। सो ये हो जाएगा 2 -2 का क्यूब -5 इंटू -2 प्लस a। सो ये हो गया -16 प्लस में 10 प्लस a। तो ये क्या आ गया, a -6 आ गया। ठीक है, सो अब क्या दिया हुआ है कि जब हमने इसमें ये वैल्यू पुट करी, जब हमने उसको डिवाइड करा, जब हमने -2 की वैल्यू डाली, तो रिमाइंडर हमारा सेम हुआ। तो रिमाइंडर सेम होने का मतलब क्या हुआ, ये चीज हुई। ठीक है, अब इसको लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व कर दो गाइस। लीनियर इक्वेशन की तरह सॉल्व करोगे तो कुछ ऐसा आएगा, ये -9a इज इक्वल्स टू -5 हुआ, माइनस माइनस कैंसिल हुआ, a क्या आ गया, 5/9 आ गया। सो बेसिकली हमें ये दिया हुआ था कि दोनों केस में रिमाइंडर सेम आएगा। हमने रिस्पेक्टिवली रिमाइंडर थ्योरम को लगाया, रिमाइंडर दोनों सेम होने का मतलब ये हुआ, और आंसर क्या आ गया फाइनली हमारा, सी आ गया, जो कि क्या है, 5/9 है। ठीक है गाइज, कमिंग ऑन टू 25th नाउ, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। साफ साफ पता लग रहा है कि हमें रैशनलाइज करना है, रैशनलाइज करके करेंगे इसको सिंप्लीफाई हम। तो गाइस जिनसे साथ साथ में रैशनलाइज होता है वो साथ साथ में रैशनलाइज करके कर लेते हैं, जिनसे नहीं साथ साथ में होता वो अलग अलग करके कर लो। सो ये ऐसा कुछ हो जाएगा, जब इसको रैशनलाइज करेंगे तो ये चीज होएगी। ऑपोजिट साइन वाले को लेते हैं हम। सो ये ऐसा हो गया, a प्लस बी a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फाइव माइनस 3 2 हुआ, 2 और 2 कैंसिल हुआ। सो इससे क्या आया फाइनली हमारे पास, √5 माइनस √3। ठीक है, इसका आ गया √5 माइनस √3। अब इसको करेंगे, इसको करने के बाद रैशनलाइज हमारा √3 माइनस √2 आएगा। देखो ऑब्वियसली ऑपोजिट साइन वाले को करेंगे। ठीक है, ये माइनस होगा यहाँ पे। सो अगेन a प्लस बी a माइनस बी, 3 माइनस 2 1 आया, बचा क्या हमारे पास, √3 माइनस √2 बचा। और फिर इससे करके हमारा क्या आएगा, √5 माइनस √2 आएगा, अगेन रैशनलाइज। उसके बाद हमारा क्या है, बेसिकली उसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऑपरेशंस लगाने हैं। ठीक है, ऑपरेशंस लगाने पे जब हम इसमें ऑपरेशंस लगाएंगे सो क्या होगा, पहले वाले से आ रहा था ये, दूसरे वाले से आ रहा है ये, और तीसरे वाले से ये आ रहा है। तो इससे क्या हो गया, ये चीज हो गई। ये और ये कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, बचा क्या, 0।
सो 0 इज द आंसर, हेंस बी आंसर हुआ। अलग अलग रैशनलाइज किया, जो उनके बीच में ऑपरेशंस थे वो ऑपरेशंस लगा दिए। गाइस ऐसे क्वेश्चन में ना पहले ही इसको मल्टीप्लाई मत कर दिया करो, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चंस में ना चीजें कट रही होती हैं, ठीक है, डिवीजन में कट रही होती हैं, तो उसको ऐसे मल्टीप्लाई करके बाद में कॉमन मत निकाला करो, ठीक है गाइस। कमिंग ऑन टू 26, वेरी इजी, ये दिया हुआ है हमें, ठीक है गाइस। पहली बात, इसमें और इसमें फर्क होता है, ये 3 इंटू होता है रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, और ये होता है हमारा 3 और रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। जब हम रूट 2 की बात करते हैं, ऐसे कुछ बात करते हैं, रूट 2 भी चलो क्या ही करेंगे, रूट एक्स ले लेते हैं, इसका मतलब होता है x की पावर 1/2, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x की पावर 2 की पावर 1/3 और उसका फोर्थ रूट, तो ये हो गया हमारा फोर्थ रूट ऑफ x की पावर 2/3। फिर इसका क्या हो जाएगा, x की पावर 2/3 की पावर 1/4, सो ये हो गई x की पावर 2/3 इंटू 1/4, सो ये 1 ये 2, तो x की पावर 1/6 आ गई। सो हेंस डी हमारा आंसर हो गया। सो इसमें हमने कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, x की पावर m की पावर n इज इक्वल्स टू x की पावर m इंटू n, ठीक है गाइस। ये क्वेश्चन 27th क्वेश्चन क्या बोला है, 27th क्वेश्चन में हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है, इक्वेशन ये दी हुई है, ठीक है, और p इज इक्वल्स टू r दिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे r के बजाय p डाल दिया, तो इससे मेरा आ गया 2p माइनस q इज इक्वल्स टू 20, ठीक है। और यहाँ पे p, q और r क्या फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, तो लीनियर पेयर में क्या होता है, सम जो होता है वो 180 के इक्वल होता है, और r और p बिल्कुल सेम है, तो मैं इसके बजाय p लिख सकती हूँ। सो यहां से मेरा 2p प्लस q इज इक्वल्स टू 180 डिग्री आ गया। मैं क्या करूंगी, मैं फर्स्ट और सेकंड को ना ऐड कर दूंगी, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन को ऐड कर दूंगी, ठीक है, एडिंग 1 and 2। सो मेरा क्या हुआ, मेरा ये ऐसे कुछ हो गया, q and q कैंसिल हो गया, 4p 200 के इक्वल आ गया, तो p क्या आ गया, 50 आ गया, ठीक है। अब इस p की वैल्यू उठा के मैं इसमें पुट कर दूंगी या इसमें पुट कर दूंगी, एक ही बात है। तो जब मैंने इसके अंदर पुट करी तो मेरा ये कुछ ऐसा हुआ, तो मेरा q क्या आ गया, 80 डिग्री आ गया। सो b मेरा क्या हो गया, b मेरा आंसर हो गया, ठीक है गाइस। हम इसमें सबट्रैक्ट भी कर सकते थे, सबट्रैक्ट करने से एक स्टेप हमारा कम हो जाता कि q की सीधा सीधा वैल्यू आ जाती हमारे पास, लेकिन हम ऐसे करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है गाइस। देखो, द टॉप ऑफ अ ब्रोकन ट्री, अब ट्री है एक, ठीक है, वो बीच में से ब्रोक हो गया है, ठीक है, अभी पता नहीं कि कहां से ब्रोक हुआ है। एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम इट्स बेस, क्या हुआ है, यहां से ये ब्रोक होके ऐसे गिरा और कहां जहां के गिरा, 12 मीटर के डिस्टेंस पे गिरा, मतलब गिर के इसका टॉप यहाँ पे आ गया और यहाँ से जो इसके बॉटम का डिस्टेंस है वो 12 मीटर दिया हुआ है, और ब्रोक जो हुआ था वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे हुआ था, मतलब ये 5 हो गया हमारा, ठीक है। अब हमारा जो ये पार्ट होगा, जो गिरा हुआ पार्ट होगा, और जो ये ऊपर वाला पार्ट होगा वो सेम होगा, क्योंकि ऊपर वाला पार्ट ही तो गिरा है, ठीक है। सो हम पहले पाइथागोरस थ्योरम से ये वैल्यू पुट निकाल लेंगे। सो अगर हमने इसको ABC लिया तो क्या हो जाएगा, BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, सॉरी AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, तो ये हो गया 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, तो ये आ गया 13 का स्क्वायर, 25 प्लस 1 44 ऑब्वियसली। सो BC क्या आ गया, 13 आ गया।
सो ये हो गया मेरा 13। अगर ये 13 है मेरा तो ये भी 13 होगा मेरा, और प्लस में 5 हो गया, तो टोटल हाइट क्या हो गई, इतना 13 पार्ट था, इतना 5 पार्ट था, तो 18 मेरी हाइट हो गई। सो मेरा आंसर क्या आ गया, आंसर मेरा सी आ गया। ठीक है गाइस, आगे देखो, द स्केल ऑन अ मैप इज, ये स्केल ये दिया हुआ है हमारे पास कि 1 mm के लिए ना 4 मीटर है, मतलब 4 मीटर का एक्चुअल है और उसके लिए 1 mm से डिनोट कर रहे हैं। तो हम 52 मीटर को कैसे डिनोट करेंगे, यहाँ पे गाइस इनवर्स एंड डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन। ठीक है, क्या है, जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैप पे भी उसका स्केल बढ़ेगा। ठीक है, मतलब अगर मैप पे इतनी सी, मतलब अगर इतने डिस्टेंस के लिए मैप पे इतनी सी चीज है, तो इतने डिस्टेंस के लिए मैप पे इतना डिस्टेंस होगा, बढ़ेगा। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन हो गया, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता था, 1/4 इज इक्वल्स टू x/52 होगा, ऐसा कुछ होगा हमारा, जहां पे x जो है वो एक्चुअल डिस्टेंस है हमारा। सो एक्चुअल डिस्टेंस x क्या हो जाएगा, 52 डिवाइडेड बाय 4 विच इज इक्वल्स टू 13 mm। मतलब कि 52 मीटर के लिए जो स्केल होगा मैप पे वो कितना होगा, 13 mm होगा। ठीक है गाइस, डायरेक्ट प्रपोर्शन होगा। डायरेक्ट प्रपोर्शन क्या हो गया कि कोई चीज बढ़ी तो दूसरी चीज भी बढ़ी, कोई चीज घटी तो दूसरी चीज भी घटी। ठीक है, आंसर इज बी। ओके गाइस, अ पॉलीहेड्रॉन हैज 7 फेसेस, फेसेस दिए हुए हैं 7, वर्टिसेस दिए हुए हैं 10, हमें एजेस निकालने हैं। अब गाइस फॉर्मूला होता है इस पे, क्या फॉर्मूला होता है, v माइनस e प्लस f इज इक्वल्स टू 2, ये फॉर्मूला होता है। इसमें डायरेक्टली पुट कर दो, e हमें निकालना है, ये दिया हुआ है। सो 17 माइनस e इज इक्वल्स टू 2, तो e क्या आ गया, 15 आ गया। ठीक है, ये फेसेस हो गए, ये वर्टिसेस हो गए और ये एजेस हो गए। ठीक है गाइस, आंसर क्या आ गया, सी हमारा आंसर हो गया। आगे क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन। देखो, एक बैग में 5 रेड बॉल्स हैं, रेड बॉल्स जो दी हुई हैं वो कितनी दी हुई हैं, 5 दी हुई हैं, और कुछ ब्लू बॉल्स दी हुई हैं जो हमें नहीं पता। तो लेट हमने नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स को x ले लिया। ठीक है, तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई हमारे पास, x+5 हो गई। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी जो है ड्रॉइंग अ ब्लू बॉल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल क्या होएगी, x/x+5। ठीक है, वो डबल है किसके, ऑफ रेड बॉल की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या होएगी हमारी, 5/x+5। तो प्रोबेबिलिटी जो है ब्लू बॉल की वो डबल है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल की। तो इसका मतलब मेरा x/x+5 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5/x+5 आया, ये और ये कैंसिल हो गया, तो x क्या आ गया, 10 आ गया। इसका मतलब मेरी नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स क्या हो गई, 10 हो गई। ठीक है गाइस, इजी। ठीक है, अब आता है ये क्वेश्चन, हमें बताना है कि इन इक्वेशंस में से, जो हमारे पास इक्वेशंस दी हुई हैं, इन इक्वेशंस में से किसके लिए m इज इक्वल्स टू 8 जो है ट्रू है। ठीक है गाइस, चलो पहली चीज देखते हैं, यहाँ पे पुट करके देख लो, मैं यहाँ पे पुट करके देखती हूँ। ठीक है, मैं देखती हूँ आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो ये हो गया 8 - 3 अपॉन में 5 का 2, तो ये हो गया 5 की पावर 3 अपॉन 5 की पावर 2, सॉरी 5 की पावर 5 अपॉन 5 की पावर 2, तो ये आ गया 5 की पावर 3। लो, फर्स्ट में मेरा आंसर आ गया। अब इसके अगला वाला करके देख लोगे तो उसमें नहीं आएगा, नेक्स्ट इसमें भी नहीं आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, और वैसे ही जब हमारा आंसर आ गया तो अब आगे क्या चलना है इसमें। ठीक है, बाई चांस कुछ और भी दिया होता है यहाँ पे, और यहाँ पे कभी दिया होता कि बोथ A and B and करेक्ट, तो उस केस में हम एक बार ही कर लेते, लेकिन इसमें से तो एक ही निकालना है, तो करने की जरूरत ही नहीं। तो आंसर क्या आ गया, A आ गया। इसको फैक्टराइज करना है। ठीक है,
सो बहुत आसान है इसको फैक्टराइज करना, सीधा सीधा कॉमन निकाल दो। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है और y कॉमन आ रहा है। यहाँ पे क्या बचा, 3x बचा और यहाँ पे 2 बचा। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 3 आ रहा है, यहाँ पे 2 बचा, यहाँ पे 3x बचा। अब गाइस देखो, जब हम फैक्टराइजेशन की बात करते हैं तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म जो होनी चाहिए बिल्कुल सेम होनी चाहिए। फर्क क्या आ रहा है इन दोनों टर्म्स में, यहाँ पे 2 के साथ माइनस है और यहाँ पे 3x के साथ माइनस है। तो मैं इस माइनस को ना बाहर ले जाती हूँ। मैं क्या कर दिया, मैं ना माइनस को बाहर ले गई। तो जैसे ही मैं माइनस को बाहर ले गई तो अंदर के साइन चेंज हो गए, ठीक है। सो अब मेरा ये इक्वल आ गया, ये और ये सेम आ गए, तो ये क्या हो गया, ये चीज हो गई। तो आंसर क्या हो गया मेरा, डी हो गया। अगर मैंने इसको देखो एक बारी फिर से यहाँ पे बोल रही हूँ, मैंने इस केस में से माइनस बाहर ले गई, तो अगर मैं यहाँ से माइनस बाहर लेके जाऊंगी तो यहाँ माइनस बचेगा और यहाँ पे ये चीज बचेगी, तो अल्टीमेटली ये ऐसे हो जाएगी। ठीक है गाइस। नेक्स्ट 34th, हमें px दिया हुआ है कि px की जो वैल्यू है वो ये दी, मतलब px दिया हुआ है हमारे पास, ठीक है। ये माइनस है, ठीक है। हमें p ऑफ 2√2 निकालना है। सो ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2√2 इंटू 2√2 प्लस में 1। गाइज ये और ये आपस में कैंसिल, क्योंकि ये भी तो 2√2 का स्क्वायर ही हो गया, तो आंसर क्या बचा, 1 बचा, ठीक है। सो बी इज आवर आंसर, अगेन वेरी इजी। अब ये दिया हुआ है हमारे पास डाटा हैंडलिंग का क्वेश्चन। सो फर्स्ट इसमें हमारे पास मार्क्स दिए हुए हैं बच्चों के, ठीक है। अब गाइस सिंस ये जीटीएससी है तो अगर आप ये लोग करने बैठोगे कि पहले यहाँ पे इनका लिखोगे कि कितना है तो दिक्कत ही हो जाएगी, फिर तो कुछ होगा नहीं, इसी में निकल जाएगा सारा टाइम। सो गाइस देखो क्या दिया हुआ है, पहले क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्लास 70 से 80 के बीच की फ्रीक्वेंसी देखी है। सो 70 से 80 के बीच में एक ये 72 है, एक ये 71 है, ठीक है, और क्या है, एक ये 78 है। सो कितने हैं हमारे पास, 3 है। सो पहले का क्या हो गया, फर्स्ट पार्ट का 3 हो गया। लोअर लिमिट पूछी है, लोअर लिमिट क्या होती है, पहली वाली, ठीक है। सो लोअर लिमिट क्या हो गई, 70 से 80 की 70 हो गई। क्लास साइज, क्लास साइज क्या होता है, डिफरेंस होता है अपर लिमिट और लोअर लिमिट में, ठीक है। सो क्लास साइज क्या हो गया हमारा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 80 माइनस 70 विच इज इक्वल्स टू 10। सो पहले का हो गया 3, दूसरे का हो गया 70 और तीसरे का हो गया 10। तो आंसर क्या आ गया हमारा, डी हमारा आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट, इफ द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, देखो सिलेंडर है, ठीक है, उसका जो बेस है, पहले सपोज करते हैं लेट हमने ओरिजिनल रेडियस को r ले लिया और हाइट को h ले लिया, तो अब नया रेडियस जो है ना वो हाफ हो गया, तो ये हो गया, और हाइट बिल्कुल सेम की सेम रही, तो हाइट h ही हो गई। तो हमें रेशो निकालना है उनके वॉल्यूम का, मतलब वॉल्यूम ऑफ हमें 2 निकालना है अपॉन वॉल्यूम ऑफ 1 निकालना है, जहां पे 2 जो है हमारा रिड्यूस्ड वाला है, जो कम हुआ, जो न्यू वाला है वो हो गया, और V1 जो हो गया वो ओरिजिनल वाला हो गया। तो वॉल्यूम क्या होगा, 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच, और इसका होगा 1/3 इंटू पाई इंटू आर स्क्वायर इंटू एच। तो ये सब चीज तो आपस में कैंसिल हो गई, तो क्या बचा, ये बचा। सो आर क्या है मेरा, हाफ ऑफ आर, और ये है आर, इसका स्क्वायर अपॉन इसका स्क्वायर, तो ये हो गया 1/4 आर स्क्वायर, और अपॉन में आर स्क्वायर कैंसिल, तो 1/4 आ गया, ठीक है गाइस। सी आंसर हो गया हमारा। कमिंग ऑन टू 37th, बहुत आसान, हमें x की वैल्यू निकालनी है। गाइस जब हमारे बेस सेम होते हैं
और मल्टीप्लिकेशन होती है बीच में और पावर्स अलग होती हैं हमारी, तो उस केस में क्या होता है, हमारी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं ना। सो ये हो गया हमारा ऐसा कुछ। कौन सी प्रॉपर्टी लगी, x की पावर m इंटू एक्स की पावर n इज इक्वल्स टू एक्स की पावर m प्लस n, ये हुआ। तो ये हो गया 4/9 की पावर -3 इज इक्वल्स टू 4/9 की पावर 2x माइनस 1। बेस सेम है, पावर्स इक्वल हो जाएंगी, तो -3 इज इक्वल्स टू 2x माइनस 1, तो -3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2x, 2x इज इक्वल्स टू -2, x क्या आ गया, -1 आ गया। तो आंसर क्या हो गया, बी हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर निकालना है जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो सबसे पहले तो हम ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर लिखेंगे। क्या होता है ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, 5 टाइम्स 9, ठीक है। अब निकालने के लिए हमें कुछ सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, ऐड तो हम कर नहीं सकते क्योंकि अगर हम ऐड करेंगे तो बढ़ जाएगा नंबर, ठीक है। तो सबट्रैक्ट करना होगा, तो पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर रूट निकाल लेंगे। सो ये होगा 3 3 9, देन 99, 60, 1 1 66, सॉरी 61, सो ये 8 हुआ, ये 3 हुआ, ये 99 हुआ, ये हो गया 62, एंड देन ये 6 6 सो 626 इंटू 6 हो गया आपका 6 6 36, 6 इंटू 2 12, 5 1 3 7 5 6, तो ये 3756 हुआ, बचा 143। मतलब अगर मैं 143 को इसमें से सबट्रैक्ट कर दूंगी तो मेरा परफेक्ट स्क्वायर आ जाएगा। सो 5 टाइम्स 9 में से मैंने 143 को सबट्रैक्ट किया, तो क्या आंसर आया मेरा, ये आंसर आया 99856। ठीक है गाइस, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक है गाइस, पाइथागोरियन ट्रिपलेट निकालने का क्या तरीका होता है, ये होता है ना, ये होता है हमारा पाइथागोरियन ट्रिपलेट, इस फॉर्म में होता है। सो इसका स्मॉलेस्ट मेंबर जो है वो 18 दिया हुआ है, मतलब 2m इज इक्वल्स टू 18 है, तो m क्या हो गया, 9 हो गया, ठीक है। सो 9 स्क्वायर माइनस 1 हमारा 80 हो जाएगा, और 9 स्क्वायर प्लस 1 हमारा 82 हो जाएगा। सो क्या हुआ, 18, 80 और 82 हो गया। सो हमारा डी जो है वो आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमें बताना है कि किस इक्वेशन का सॉल्यूशन y इज इक्वल्स टू 2 है। ठीक है गाइस, इक्वेशन सॉल्व करके देखते हैं। पहली सॉल्व करा हमने, 3y इज इक्वल्स टू 6 आया, लो y इज इक्वल्स टू 2, तो आंसर ही आ गया। और किसी में भी नहीं आएगा क्योंकि एक ही इक्वेशन पूछी हुई है, तो हेंस a जो हो गया वो हमारा आंसर हो गया। अब आती है एप्टीट्यूड की बारी गाइस, दिमाग, लॉजिकल की बारी। आई होप सबने अपना लॉजिक लगाया होगा इस सेशन में। पहला देखो, मद्रास को डिनोट करा है ऐसे। देखो अब ना इसमें लिंक देखो क्या हो रहा है, m और इसके बीच में ना 2 लेटर्स जा रहे हैं, मतलब एक तो हमारा क्या क्या जा रहा है, क्या होता है हमारा, ये जाएगा, जा रहे हैं, मिस हो रहे हैं। a और x के बीच में क्या हो रहा है, y और z मिक्स हो रहे हैं। d और a के बीच में b और c मिक्स वो हो रहे हैं, मिस हो रहे हैं। ठीक है, सो ऐसे ही अगर हम बॉम्बे लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, मतलब बेसिकली हम -2 कर रहे हैं, -2 लेटर्स हो रहे हैं हमारे। ठीक है, सो B के केस में क्या होगा, B से पहले A आएगा और उससे पहले Z आएगा, तो Y आना चाहिए, तो B का क्या हो गया, Y हो गया, और यहाँ पे भी B है तो यहाँ पे भी Y हो गया। O में क्या हुआ, O में हमारा, O से पहले क्या क्या बच रहा है हमारा,
एक बच रहा है n और एक बच रहा है m, ये दोनों मिस हो रहे हैं, इससे पहले l है तो ये l होगा, यही आ रहा है यहाँ पे, और तो वैसे ही कुछ नहीं आ रहा, तो a हमारा आंसर हो गया। ठीक है गाइस, ये क्वेश्चन, द interchange of which of the following given numbers या signs in the alternatives will make the equation meaningful। हमारे पास ये चीज दी हुई है, इसमें हम ऐसी दो चीजों को किसको इंटरचेंज करेंगे कि हमारे पास सही हमारी इक्वेशन फुलफिल होगी। सो अगर मैं इसको और इसको इंटरचेंज कर देती हूं तो मेरे पास आ जाएगा 76 के इक्वल आ जाएगा। सो हेंस मेरा आंसर क्या हो गया, डी हो गया। बाकी और मैं किसी को भी इंटरचेंज करूंगी तो आंसर नहीं आएगा। नेक्स्ट देखो, ऐसा कुछ दिया हुआ है, पैटर्न देखो क्या दिया हुआ है। देखो 5 और 26 में क्या होगा, मुझे पता है मैं इसको 21 5 + 1 लिख सकती हूँ और यहाँ पे ये 5 लिख सकती हूँ। 25 जो होता है वो 5 का स्क्वायर होता है, तो ये ऐसे कुछ हो गया। ये जो होगा मेरा ये 64 + 1 होगा। ठीक है, 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूं तो ये 8² + 1 रेशो 8 आ गया। ठीक है, या जो भी हो गया, तो आंसर क्या आ गया मेरा, 8 आ गया। आंसर मेरा सी हो गया। दिस क्वेश्चन नाउ, इन अ रो ऑफ बॉयज, बॉयज का रो दिया हुआ है। ठीक है, बॉयज हैं, रो में दिए हुए हैं। तो विशाल जो है वो 7 से लेफ्ट है, लेफ्ट मतलब इस साइड से 7th नंबर पे विशाल है, और राइट साइड से 11th नंबर पे कौन है, कमल है। ठीक है, सो अगर इन्होंने अपनी प्लेसेस बदल दी, इंटरचेंज नहीं करी, ये नहीं हुआ कि 7th विशाल 7th नंबर मतलब कमल जो था वो 7th पे आ गया और विशाल जो है वो केप की टाइप उस पे आ गया, इन्होंने बस एक्सचेंज करी है। ठीक है, मूव हुए हैं। अब जो विशाल है ना वो 13th है लेफ्ट से, मतलब 13th नंबर पे है लेफ्ट से, मतलब ये 6 आगे चला गया। ठीक है, सो कमल क्या होगा, कमल 6 पीछे चला जाएगा, मतलब अगर मैं पीछे की साइड से देख रही हूँ, राइट साइड से देख रही हूँ, तो 6वें पे चला गया, तो 11 + 6 कितना हो गया, 17 हो गया, तो बी हमारा 17 आ गया। जब विशाल ने अपनी 6 तरफ मूव करा, 6 साइड वो गया, तो जो कमल होगा हमारा वो 6 साइड पीछे की तरफ से जाएगा, तो कौन सी प्लेस पे चला जाएगा वो, 11 + 6 विच विल गिव मी व्हाट, 17। ठीक है, दिस क्वेश्चन देखो गाइस, इसमें दिया हुआ है क्या चीज किसके लिए स्टैंड करती है, तो चलो फिर डालते हैं। लेस देन के लिए हो गया यहाँ पे -4, इसके लिए इंटू हो गया 5, देन प्लस, देन 8 डिवाइडेड बाय 2। सो ये ऐसा कुछ हो गया, तो ये हो गया हमारा 56 - 20 विच इज इक्वल्स टू 36। हेंस बी हमारा रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, देखो दिस इज अ बिट ट्विस्टेड गाइज, ये थोड़ा ट्विस्ट के साथ है क्वेश्चन, बट वैसे बहुत इजी है। देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास ना, ये दिया हुआ है कैस्ट्रोफोन दिया हुआ है। ठीक है, सो हमें बताना है इसमें ऐसे कौन से पेयर्स बन रहे हैं जिनके बीच में, मतलब ऐसे 2 लेटर्स के पेयर्स बन रहे हैं हमारे, बेसिकली 2 से ज्यादा लेटर्स के पेयर्स बन रहे हैं जिनके बीच में जो एक्चुअली नंबर्स है ना, मतलब एक्चुअली जितने अल्फाबेट्स हैं वो सेम है जितने की अल्फाबेट्स में होते हैं। मतलब एक एग्जांपल बताती हूं मैं, अगर मैं कैट लिखती हूँ, मैं सपोज कैट नहीं सॉरी, मैं लिखती हूँ सपोज CCA सपोज, तो इसमें इस सी और इस सी के बीच में एक लेटर छूट रहा है, और अगर मैं अल्टीमेटली ABC देखती हूँ, जब अल्फाबेट्स जब अपनी ये करती हूँ, तो इन दोनों के बीच में भी एक ही लेटर छूट रहा होता है ना, तो ऐसे ही हमें बताने हैं। सो CA तो हो नहीं सकता क्योंकि ये साथ में है और एक्चुअली में इनके बीच में B होता है। ठीक है,
अच्छा और देखते हैं। अच्छा एक हो गया गाइज हमारा ओपी, जो हमारा ओपी होता है, ठीक है। ओपी में क्या होता है हमारा, ओपी में हमारा एक ही लेटर मतलब बिल्कुल साथ साथ में आता है ना ओपी, तो एक तो हमारी ये चीज हो गई। एक हो गया हमारा ओएन, एनओ जो होता है हमारा, एन और ओ में कोई डिफरेंस नहीं होता ना, एन और ओ में होता है। ऐसे ही गाइस और भी लेंगे हम लोग, ठीक है। सो ऐसे ही हमने जब पेयर्स निकाले, ठीक है, जैसे और भी होगा, तो पेयर्स निकालने के बाद हमारे पास जो टोटल होंगे, जो टोटल नंबर ऑफ पेयर्स आएंगे वो क्या आएंगे, 6 पेयर्स आएंगे हमारे पास, ठीक है। सो गाइज आई एम राइटिंग द पेयर्स, ठीक है, पेयर्स लिख रही हूं मैं यहाँ पे। सो क्या क्या पेयर्स होंगे, एक ये हो गया, एक ये हो गया हमारा, एक हो गया हमारा HONE, एक हो गया हमारा ST, एक हो गया हमारा ट्रैफो, और एक हो गया हमारा ROP। इसके लिए होगा हमारा EFGH, ई और देखो ना इसमें 2 लेटर्स छूट रहे हैं और इसमें भी 2 लेटर्स छूट रहे हैं। ST में क्या होता था, साथ साथ में होते थे बिल्कुल। ट्रैफो में T और O में कितने फर्क आ रहे हैं, उतने ही इसमें आ रहे हैं। ऐसे ही इसमें PQR होता था तो वो हो रहा है, ठीक है। सो कितने हो गए, 6 हो गए। सो बेसिकली हमें वो पेयर्स बताने थे जिनके बीच में सेम नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होते हैं। कैसे कंपेयर करना है, एक्चुअली ABCD से कंपेयर करना है, ठीक है। ओके, नाउ दिस क्वेश्चन। अमर ने पॉइंट करा किसी और बॉय पे जो कि बॉलिंग कर रहा था, उसको क्या बोला कि ही इज द सन of the daughter of the father of his paternal uncle। तो अमर का पैटर्नल अंकल कौन हुआ, उसका अंकल ही हुआ, ठीक है, पापा की साइड वाला हुआ, मम्मी की साइड वाला नहीं हुआ। पैटर्नल होता है फादर साइड और मैटर्नल होता है मदर साइड, तो उसका अंकल हुआ। अब उसके जो अंकल के फादर होंगे वो अमर के क्या होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, ठीक है, ऑब्वियसली, ठीक है। सो अब उसने आगे क्या बोला कि उनकी जो डॉटर है, फादर की जो डॉटर हुई, वो अमर की क्या हो गई, वो अमर की आंट हो गई। और अमर की जो आंट का बेटा है, ठीक है, वो क्या हो गया, अमर का कजन हो गया। सो क्या हो गया हमारा आंसर, ए हमारा आंसर हो गया, ठीक है। डाइस की बात आती है। देखो गाइस, इसमें ना एक ये पोजीशन दी हुई है, एक ये पोजीशन दी हुई है। मतलब अगर मैं ऐसे डाइस बनाती हूं, ठीक है, ये डाइस मैंने बनाया। ओके, लेट मी जस्ट मेक इट वंस मोर गाइस, थोड़ा सा अजीब बन गया है। ठीक है, ये है। सो ये ऊपर वाला 1 है, ठीक है, ये 3 है, ठीक है, ये हो गया हमारा 2, ठीक है, और दूसरी साइड पे ये हमारा है 5, मतलब ये वाला पार्ट, ये वाली चीज 5 है और ये वाली चीज जो है वो 6 है। तो हमें ये नीचे वाली चीज बतानी है, तो बचा क्या, 4 बचा ना। सो अगर मैं 4 टॉप पे करूंगी तो ऑब्वियसली 1 मेरा नीचे होगा, ठीक है गाइस। सो आंसर क्या हो गया, ए हो गया। सेकंड लास्ट क्वेश्चन गाइस। देखो, एक बॉय ने स्टार्ट करा अपने होम से, सपोज उसका घर यहाँ है, ईस्ट की तरफ गया, ईस्ट यहाँ पे जाएगा, ठीक है, दिस इज नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, 5 किलोमीटर गया। उसके बाद यहां से इसने राइट लिया, राइट मतलब यहाँ पे लिया, 8 किलोमीटर गया। यहां से उसने फिर राइट लिया, तो राइट लेने का मतलब यहाँ पे गया और 10 किलोमीटर गया यहाँ से। तो यहाँ से और इसमें क्या होगा, एक तो जब हम लोग ऐसे देखते हैं, सो बेसिकली क्या होगा, इस पॉइंट पे होगा, मतलब साउथ वेस्ट पे होगा। सो आंसर क्या आ गया, साउथ वेस्ट आ गया, बी आंसर हो गया। लास्ट क्वेश्चन गाइस,
देखो हमें ना वाटर इमेज बतानी है, तो वाटर इमेज में क्या होता है, हमारा वाटर इमेज में हमारी जो इमेज होती है ना, जो लेटर्स होते हैं, जो भी दिया होता है वो ना उल्टी हो जाती है, 180 पे रोटेट हो जाती है। सो इसको मैं 180 पे रोट करूंगी तो ऐसे ही होगा, ये भी ऐसे ही आएगा, ये मेरा ऐसे हो जाएगा और सी मेरा ऐसे का ऐसा ही रहेगा। सो क्या हो गया, आंसर मेरा सी आ गया। ठीक है गाइस, सो ऐसे क्वेश्चंस थे गाइस, आई होप आंसर समझ में आ गए होंगे एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू यू गाइस फॉर द रिजल्ट। होप सबने अच्छे से अटेम्प्ट करा हो। ठीक है गाइस, देन बाय बाय, टेक केयर। हे दोस्तों, तो हम अपने एप्टीट्यूड वाले पार्ट के साथ आगे बढ़ते हैं और इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मैड्रेस को अगर हमने कोड किया है JXAOXP से तो बॉम्बे का कोड क्या होगा। तो यहाँ पर देखो ना यार, यहाँ पे एक पैटर्न ऑब्जर्व करो। वैसे तो आप नंबर, हर अल्फाबेट को ABCD को एक नंबर डाल के भी इस क्वेश्चन को कर सकते हो, मान लिया, लेकिन अभी कुछ बच्चों ने वो नहीं सीखा है, तो आप ऐसे सोच सकते हो कि यार M और J में क्या रिलेशन है। आप देखो JKLM, तो 3 स्टेप बैकवर्ड्स जाने पे M आ रहा है। अब आप बोलोगे A से 3 स्टेप बैकवर्ड पे कैसे आ रहा है यार। आप ऐसे सोचो क्या होता है, X Y Z फिर ABCD फिर से शुरू हो जाता है, तो A से 3 स्टेप बैकवर्ड्स पे ही है अगर आप पूरा साइकिल बना दो तो, ठीक है। तो D से 3 स्टेप बैकवर्ड्स पे है ना ABCD, D से 3 स्टेप बैकवर्ड्स पे A है। तो सिमिलरली B से 3 स्टेप बैकवर्ड पे क्या होगा, B से 3 स्टेप बैकवर्ड पे होगा Y, O से 3 स्टेप बैकवर्ड पे क्या होगा L, ठीक है। तो ये A इसका आंसर आ जाएगा यार, ठीक है। दिस इज फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ द सेकंड क्वेश्चन। अब ये जो होता है, ये बोल रहा है कि किस साइन के इंटरचेंज पे हमारा कौन सा ऑप्शन, ये जो है इक्वेशन करेक्ट हो जाएगी। तो ऑप्शन से ही हमें यहाँ पे पुट करना होता है, ठीक है। आप ऑप्शन को डाल के देखो, 8 और 6 को इंटरचेंज करके देखो, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ा नंबर आ रहा है, ये तो नहीं होगा फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। आप ऑप्शन डाल के देखो, देखो लास्ट ऑप्शन पे डाल के देखता हूँ तुमसे पहले। यहाँ पे मल्टीप्लाई डाल दो, यहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह प्लस डाल दो, प्लस की जगह मल्टीप्लाई डाल दो, ठीक है। अब देखो क्या पता ये सही हो जाएगा, 60 प्लस 48 माइनस 32, ठीक है। 48 माइनस 32 इज व्हाट, 16, तो 76 आ रहा है। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है जी। थर्ड क्वेश्चन पे हम आते हैं। अब इसमें ना हमें पैटर्न ढूंढना होता है, कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो अगर आप देखो 26 को आप लिख सकते हो 5 स्क्वायर प्लस 1, और यहाँ पे क्या आ रहा है 5। सिमिलरली 65 को क्या लिख सकते हैं, 64 किसका स्क्वायर होता है 8, 8 स्क्वायर प्लस 1, यहाँ पे क्या आना चाहिए 8 आना चाहिए, तो 8 मस्ट बी द आंसर। सी ऑप्शन इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। डी ऑप्शन पे हम आते हैं, डी क्वेश्चन पे हम आते हैं। तो हमारे यहाँ पे एक रोज है बॉयज की, जिसमें विशाल इज, मान लिया ये लेफ्ट है, मान लिया ये राइट है, ठीक है। तो लेफ्ट से 7th प्लेस पे विशाल खड़ा है, ठीक है। यहां से 7th प्लेस पे कौन खड़ा है भाई, विशाल खड़ा है, चलो बहुत बढ़िया बात है। कमल इज 11th फ्रॉम राइट, तो राइट से 11th पे कमल है, 11th पोजीशन पे कौन खड़ा है भाई, कमल खड़ा है। विशाल इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, विशाल इज 13th फ्रॉम द लेफ्ट, what is the new position from of the कमल from the right। अच्छा, अगर हमने एक्सचेंज कर दिया, अगर हमने विशाल को यहां पे ले आए, विशाल को अगर हम यहां पे ले आए, तो वो लेफ्ट से 30th पोजीशन पे है, ठीक है। सोचो यहां से ये 11th पोजीशन पे था, ये 13 है, तो 13 प्लस 11 माइनस 1 करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे खुद विशाल खड़ा है। ये पोजीशन होगी किसकी, ये पोजीशन होगी हमारी कमल की, है ना, सॉरी विशाल की। तो ये इस पोजीशन को अगर हम गिने तो हमें पता लग जाएगा कितने बच्चे हैं कुल मिला के, ठीक है। हमें ये पता लग जाएगा कितने बच्चे हैं कुल मिला के। तो ये हमारा 13 प्लस 11 ये हो जाएगा 24 माइनस 1, 23 बच्चे हैं। तो 23 बच्चे, अब यहां से 7th पोजीशन पे ये है, तो राइट से कौन सी पोजीशन पे होगा, 23 माइनस 7, ठीक है। और साथ में खुद उसकी एक पोजीशन होगी, आई थिंक ये होना चाहिए, तो 17th आई थिंक यहाँ पे आना चाहिए, क्यों, क्या कहते हो, 17th इसका आंसर है, ठीक है। तो खुद से एक बार करके देख लेना बच्चे, तब ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये। 45 क्वेश्चन पे हम आ जाते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम ही कर रहा हूँ, ठीक है। 45 क्वेश्चन कहता है कि अच्छा 52 लेस देन के साइन को हमने बोला है -4, और पावर को हमने बोला है मल्टीप्लाई, और 5 लिखा है उसके आगे, ठीक है। मैं इसको डिकोड कर रहा हूँ, इसको बात लिख रहा हूँ मैं। ग्रेटर देन के साइन को बोला है प्लस,
और ये V, अच्छा ये स्टैंड करता है डिवीजन के लिए, ठीक है, ग्रेटर देन डिवीजन 2। तो पहले बॉड मास से पहले डिवीजन होगा, यहाँ 4 आएगा, मल्टीप्लीकेशन होगा 20 आएगा, और 52 माइनस 20 प्लस 4, ठीक है, ये आएगा। तो 52 माइनस 20 32 प्लस 4, मेरे ख्याल से 36 आना चाहिए। व्हाट डू यू से? ठीक है, ये क्वेश्चन सभी बच्चों ने कर दिया होगा। अब ये बोला है हाउ मेनी पेयर ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ल्ड which have as many as letters between them in a word as in alphabet। ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लग रहा है भाई, इसके बारे में सोच लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा ध्यान से सोचे तो यार यहाँ पर क्या हो जाएगा, लुकिंग इनटू द अल्फाबेट्स देयर आर 6 पेयर्स, है ना, कुल मिला के 6 पेयर्स होंगे हमारे पास। अगर हम देखें तो एक तो ON है, ठीक है कि नहीं है, ON है कि नहीं होगा, और एक अगर हम देखें होन एक आ रहा है हमारा इसमें, ठीक है ना, लेटर्स बिटवीन देम एज वर्ड एज इन अल्फाबेट, ठीक है, एक ये आ जाएगा। और कौन सा आ रहा है हमें, ST एक आ रहा है, ST अगर हम देखें तो ये आ जाएगा। और कौन सा आ रहा है, ट्रेफो एक आ जाएगा, ट्रेफो, ठीक बात है ना। और कौन सा आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रेफोन भी आ जाएगा, एक ट्रेफोन भी हम बोल देंगे। और कौन सा, RP आ रहा है ना, एक RP आ रहा है, नहीं RP नहीं आ रहा है, RAP आ रहा है, रैप आ रहा है, रैप आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, रैप सबके बारे में सुना है सब बच्चों ने, ठीक है। तो ये हमारा मतलब अगर हम इसको देखें तो यार ये हमारा कुछ कुछ बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो फर्स्ट को अगर हम देखें यार, ये अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना, फर्स्ट ऑन का हम देखें तो नो हो जाएगा हमारा, सही बात है। और सेकंड अगर हम होन को देखें तो EFGH, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। थर्ड अगर हम देखें ST को ST, फोर्थ अगर हम देखें ट्रेफो, ट्रेफो वर्ड को अगर हम देखें तो यहाँ पे ये OPQRST से इसको बोल सकते हैं। फिफ्थ अगर हम ट्रेफोन को देखें, ट्रेफोन को देखें तो यहाँ पे यार सिर्फ N और लग जाएगा, है ना। ट्रेफोन को अगर हम देखें, ट्रेफोन जो हमने सेलेक्ट किया है इसमें हमारा N और जुड़ जाएगा, NOPQRST हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम रैप को देखें तो उसे PQR बोल सकते हैं, ठीक है। 6 हो गए, ये नहीं सॉरी 5 हो गए, छठा रैप को देखें तो उसे PQR बोल सकते हैं, सही बात है। तो कुल मिला के कितने पेयर्स हमारे यहाँ पे हो रहे हैं, कुल मिला के अगर हम देखें यहाँ पे हमारा आंसर आई थिंक 6 आ जाएगा, ठीक है, 6 पेयर्स हमारे यहाँ पर, D, ठीक है। तो समझ में आया ना ये क्वेश्चन आपको, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था समझ में आया ना भाई, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स are there in word which have as many letters as between them in the word as in the alphabet, ठीक है, समझ रहे हो आप, मतलब जो कितने पेयर ऑफ लेटर्स ऐसे हैं इसमें, उसमें उतने ही वर्ड बीच में होते हैं जितने वास्तव में अल्फाबेट्स में होते हैं, ठीक है। तो यही हमें पता लग रहा है, यही हमें पता लग रहा है भाई यहाँ पे, ठीक है, इनके बीच में भी इतने ही वर्ड्स होते हैं जी। तो ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है यार, बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, ठीक है। तो अमर से 47 क्वेश्चन पे आते हैं। अमर पॉइंटिंग टू अनदर बॉय से हु इज बॉलिंग सेड दैट ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हिज पैटर्नल अंकल, द बॉय इज अमर्स, ठीक है। अब इस तरीके का क्वेश्चन जब भी हमारे सामने आता है तो हम एक चेन सी बना लेते हैं, मतलब कि क्या यहाँ पे है, सबसे पहले सबसे ऊपर आपका फादर आ रहा होगा, ठीक है, सबसे ऊपर फादर आ रहे हैं, फादर के नीचे क्या क्या आ रहा है जरा ये सोच लिया हमने, ठीक है। तो फादर के नीचे एक तो हमारा अमर आ रहा है, ठीक है, अमर आ रहा है, अमर, और हमारा वो बॉय भी आ रहा है, मतलब वहां पे, ठीक है जी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलो इसे ना एक सिंपल तरीके से करते हैं, मैं फिगर बना के कर सकता हूँ आपके लिए, बट एक सिंपल तरीके से करते हैं, ठीक है, घरेलू तरीके से। मैं ना, हम खुद को मान लेते हैं, ठीक है, मान लिया मेरा नाम अमर है, मान लिया मैं अमर हूं, मैं किसी लड़के को बोल रहा हूं, मैं किसी लड़के को बोल रहा हूं, ठीक है ना, बॉय को बोल रहा हूं, मैं किसी बॉय को बोल रहा हूं, ही इज द सन ऑफ द डॉटर, ठीक है, ये बेटा है, ये क्या है, ये बेटा है, क्या है, बेटा है, ही सन ऑफ द डॉटर, किसकी, बेटी का, मेरे, ऑफ माई पैटर्नल अंकल, डॉटर ऑफ father, son of the daughter of the father of his paternal uncle, ठीक है।
तो अमर अच्छा डॉटर ऑफ द फादर ऑफ द हिज पैटर्नल अंकल, ठीक है। मेरे चाचा के पापा, ठीक है, मेरे पैटर्नल अंकल कौन हुए? मेरे चाचा के पापा। मेरे चाचा के पापा मतलब मेरे कौन हुए? दादा। मेरे दादा की बेटी, मेरे दादा की बेटी मेरी कौन लगी? मेरी दादा की बेटी लगी मेरी बुआ, ठीक है। मेरी बुआ का बेटा है, मेरी बुआ का क्या है? बेटा है। तो मेरी बुआ का बेटा है, ऑब्वियसली ये क्या हो गया? मेरा कजन हो गया, ये मेरा कजन हो गया, ठीक है। आप प्रैक्टिकल तरीके से इसे करके देखिए, खुद पे अप्लाई करके इसे करके देखिए, ठीक है। जी ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन अवर कंप्यूटर स्क्रीन इज, अच्छा यहाँ पे बोला अगर 4 बॉटम पे होगा तो टॉप पे कौन सा नंबर होगा? अब ये डाइस वाले नंबर क्वेश्चन अगर आपने पहले सॉल्व कर रखे होंगे तो इससे हम देखते हैं कि यहाँ पर हम इसे सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व किया जा सकता है, इट कैन बी ऑब्जर्व फ्रॉम बोथ ऑफ द डाइस। इफ 2 3 5 6 है ना एडजेसेंट टू 1, देन नंबर 1 इज अपोजिट टू 4, ठीक है भाई। 2 3 भी 1 के एडजेसेंट है, 5 6 भी 1 के एडजेसेंट है, मतलब 1 के अपोजिट में ही 4 होना चाहिए। सही बात है कि नहीं है? सच ऑफ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 पे हम लोग आ जाते हैं। अब इस तरीके के क्वेश्चन को हम डायग्राम बना के कर लें तो बहुत ज्यादा अच्छा रहता है हमारा। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ऐसे डायग्राम बना के, ठीक है। तो ऐसे डायग्राम बना के आप करोगे तो आप बोला कि हमने आफ्टर वॉकिंग 5 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट, मान लिया 5 किलोमीटर चल दिए भाई, सही है, बहुत बढ़िया। और उसके बाद कहाँ को टर्न लिया? राइट को टर्न लिया, मतलब राइट हो गया ये। और कितना चले? 8 किलोमीटर चल दिए राइट को, ठीक है, चलो भाई चल दिए। फिर लेफ्ट टर्न लिया, देन ही अगेन टर्न टू हिज राइट, सॉरी, एंड वॉक फॉर 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर चल दिए। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम हिज हाउसेस। अब हम इस फिगर से अगर ध्यान से ऑब्जर्व करें, we can see the boy will be in the साउथ वेस्ट डायरेक्शन फ्रॉम हिज हाउस, ठीक है। मान ले यहाँ पे इसका घर है तो ये साउथ वेस्ट डायरेक्शन है ना, या वेस्ट भी है साउथ भी, साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, ठीक है। ओके ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन अवर कंप्यूटर स्क्रीन इज, choose the alternative which closely resembles the water image of the combination of disk। अगर हम इसको पानी में दिखाएंगे तो कौन सा इमेज हमारा सही आएगा, ठीक है, कौन सा वाटर इमेज बनेगा, ठीक है। अच्छा पानी में आपको पता है ना, पानी में ऐसा नहीं होगा कि उल्टे से शुरू हो जाएगा, ठीक है, मतलब डी तो आपका कुछ ऐसे ही होगा, ठीक है। डी बस ये वाला शेप तो होता है, और आई भी ऐसे ही लिखा होगा, बस ये जो एस है ये ऐसे दिखाई देगा कुछ, सही बात है, ये ऐसे दिखाई देगा, सी भी ऐसे ही दिखाई देगा यार, ठीक है। मतलब पानी में आप देखते हो होता क्या, वर्टिकली इंटरचेंज होता है बस। आई थिंक सी इसका आंसर होना चाहिए, बाकी आप एक बार इसे देखिएगा जरूर, ठीक है। सो बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन होते हैं यार एप्टीट्यूड के, होपफुली आपको अच्छे लगे होंगे। आप एक बार दोबारा से इन क्वेश्चंस को करके देखिएगा जिसमें आपको दिक्कत हो, ठीक है, हमने थोड़ा जल्दीबाजी में लिया है। तो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, thank you so much for stay with us, we will meet again very soon, thank you very much।